नाउ द प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब हम देखेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट आर दोज एसी सर्किट्स that contain only one inductor along with an AC source। AC सोर्स के साथ सिर्फ एक इंडक्टर लगा है, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगर मैं इस सर्किट को मान लूं तो मैंने एक इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू L है, किसी अल्टरनेटिंग सोर्स जिसका वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ बदल रहा है, अलॉन्ग विद ए की कनेक्ट कर दिया है। नाउ व्हेन स्विच इज ऑन, की इज ऑन, then current start flowing। As I have told you earlier that in case of AC we don't show the direction of current in the circuit as AC changes its direction continuously। That's why I am not going to write I in this। I can write I, but I am hardly dare to show the direction of current। So current I flows in the circuit, and we know it is the property of a self inductor or an inductor that it opposes the growth or decay of the current। Since AC is continuously changing, either it is increasing or decreasing, so a constant back EMF is induced, that is denoted by E। So voltage of the circuit applied is V equal to V naught sin omega t, and current in the circuit flows, then EMF E develops। We know the total voltage in the circuit develops will be equated by the induced EMF, because there is no drop of voltage in the circuit itself as it contains no resistance। तो सर्किट में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो whatever voltage we have applied that will be totally encountered by the induced EMF। So we can say V equal to E, both should be same, but we know V equal to V naught sin omega t, and E was equal to, हमें पता है induced EMF in an inductor is equals to negative L di by dt। negative becomes positive, so what remains? V naught sin omega t equals to L di by dt। But if I say, because I need to find the expression of current, so di can be written as V naught divided by L sin omega t dt। This value of current is at any instant, so the total value of current during the whole cycle, or करंट I को इंटीग्रेट करता हूं मैं बिटवीन 0 टू t फॉर ओवर डी आई, और यहां से मैं इसकी वैल्यू रखता हूं V नॉट अपॉन L, क्योंकि कांस्टेंट इट विल बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। ये इंटीग्रेशन 0 से t तक मैंने किया, किसी टाइम t तक करंट का ग्रोथ मैंने देखा था, तो यहां से मेरे पास आएगा V नॉट। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos omega t, and since omega is the function of time, so it will be dividing the whole factor, so omega will be coming in the division। यहां से हमने लिया था करंट I equal to V naught upon L omega minus cos omega t। V naught upon L omega is called I naught। V naught upon L omega, L omega को हम कहते हैं XL, that we call inductive reactance। It is not a kind of resistance, it is reactance, we will discuss it later। So just by now this is XL, यानी inductive reactance। So replacing the value I becomes I naught minus cos omega t। Cos omega t can be written as sin pi by 2 minus omega t। sin pi by 2 minus omega t, जब मैं इसको यहां पर लिखता हूं, माइनस को अगर मैं अंदर लेता हूं तो ये ओमेगा टी को पॉजिटिव और साइन को 90 डिग्री को माइनस बना देगा, तो बिकम्स आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ऐसा मैंने क्यों किया? हमें पता है कि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अगर मैं नेगेटिव साइन को लिख रहा हूं तो ये वैल्यू 90 माइनस ओमेगा टी, यानी ये कहीं ना कहीं वैल्यू जो है मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रही है, जिसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता हूं तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव यहां से पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मुझे इसको माइनस करना होगा। अब मैं देखता हूं करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मैंने वोल्टेज को पहले माना है, तो मैं कहूंगा फाई इक्वल टू 5e माइनस 5i। 5e मतलब फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। वोल्टेज का फेज था ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से ओमेगा टी, बट करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
जब मैं इस माइनस को यहां से ओपन करूंगा तो पाई बाय टू ओमेगा टी बिकम्स नेगेटिव, पाई बाय टू बिकम्स पॉजिटिव, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल होगा, फाई कम्स पॉजिटिव पाई बाय टू। यानी वी कैन से वोल्टेज लीड्स द करंट इन द इंडक्टिव सर्किट बाय 90 डिग्री। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है सर्किट में करंट को, एंड वी कैन से करंट इज लैगिंग इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो आई एम एम्फसाइजिंग अगेन, in pure inductive circuit voltage leads the current by 90 degree and current lags the voltage by 90 degree. So this expression. Now by now we have learnt about the pure inductive circuit, that in pure inductive circuit if voltage is represented by V equal to V naught sin omega t, then current lagging by 90 degree will be represented by I equal to I naught साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो इसका टाइम डायग्राम कैसे बनाएं? टाइम डायग्राम बनाने के लिए पहले इस टेबल पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मुझे वोल्टेज का जो फेज एंगल मिल रहा है ओमेगा टी मिल रहा है, जबकि करंट का फेज एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। हमने पहले इस टेबल को देखते हैं, यहां पर टाइम हमने दिया टाइम, यहां पर मैं वैल्यू लेता हूं ओमेगा टी की कितनी होगी उस टाइम पर, फिर मैं देखता हूं ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होगी उस टाइम पर, और फिर मैं देखता हूं वोल्टेज कितना होगा उस गिवन टाइम पर, और फिर देखता हूं करंट कितना होगा। तो जब हम टाइम टी इक्वल टू जीरो लेते हैं तो ओमेगा टी, क्योंकि हमें पता 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, जैसे टी जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा। अब ओमेगा टी जीरो है तो यहां पर बचेगा मेरे पास सिर्फ माइनस पाई बाय टू। माइनस पाई बाय टू का मतलब होता है माइनस के 90 डिग्री, यानी जो वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी आएगी वो माइनस का 1 आएगी। तो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जीरो था तो जीरो, बट करंट की वैल्यू साइन माइनस पाई बाय टू का मतलब है माइनस साइन पाई बाय टू, और पाई बाय टू की वैल्यू हमें पता है साइन की +1 होती है, बट ऑलरेडी माइनस हैज कम, तो माइनस आई नॉट। तो जब वोल्टेज जीरो होगा सर्किट में करंट मिनिमम होगा। जब मैं टाइम पीरियड टी बाई 4 रखता हूं तो ये मेरे पास जो वैल्यू ऑफ ओमेगा टी है वो पाई बाय टू आएगी, टी बाई 4 रख के यहां 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा और टी से टी कट जाएगा तो पाई बाय टू आएगा 90 डिग्री। बट ओमेगा टी 90 था और माइनस 90, यानी पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू बिकम्स जीरो, करंट ये फेज जीरो हो जाता है। तो वोल्टेज का वैल्यू आएगा साइन ओमेगा टी यानी +1, सो वी इक्वल टू वी नॉट, बट करंट बिकम्स जीरो एट दैट टाइम। सिमिलरली जब टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा टी हाफ, देन एंगल ओमेगा टी विल बी पाई एंड दिस विल बी पाई माइनस पाई बाय टू मींस पाई बाय टू प्लस का। सो वोल्टेज तो जीरो होगी क्योंकि हमें पता है साइन 90 की वैल्यू साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, बट ये साइन 90 की वैल्यू +1, सो ये प्लस आई जीरो होगा। दिस वे दिस टेबल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी नेगेटिव वी नॉट एट थर्ड क्वार्टर ऑफ टाइम पीरियड, बट करंट विल बी जीरो एट दैट टाइम। जब कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा तो वोल्टेज बिकम्स जीरो बिकॉज ऑफ 2 पाई, बट because of 3 pi by 2 current becomes minus I naught, and this process goes on up to the next cycle. So how to draw? First of all I will draw the voltage I am taking with the black pen। जब टाइम जीरो था तो वोल्टेज ये था, जब मेरे पास टाइम t by 4 हुआ तो वोल्टेज पीक पर पहुंच गया, t by 4 ये है मेरे पास t by 4 टाइम। जब मेरे पास टाइम t by 2 हुआ तो वोल्टेज अगेन बिकम जीरो। जब मैंने वोल्टेज टाइम को 3t by 4 लिया देन वोल्टेज बिकम्स मिनिमम माइनस वी नॉट, एंड जब टाइम मैंने t लिया तो अगेन इट बिकम्स जीरो, और ये 5t by 4। तो दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय वोल्टेज, ये वोल्टेज का ग्राफ है। नाउ सी द टाइम डायग्राम ऑफ करंट। अब मैं इसको हाइड कर लेता हूं, सिर्फ करंट को देखता हूं। जब मेरा टाइम t इक्वल टू जीरो था उस टाइम मेरे पास करंट माइनस आई नॉट था, यानी ये यहां पर था माइनस आई नॉट करंट की वैल्यू। जब टाइम t बाई 4 लिया तो करंट बिकम्स जीरो, ये जीरो पर आया। जब टाइम t बाई 2 लिया तो करंट बिकम्स पॉजिटिव, यानी अपनी पीक पर पहुंच गया, पीक एम्पलीट्यूड पर आ गया, मतलब पीक वैल्यू पर आ गया। जब टाइम बिकम 3t बाई 4 अगेन करंट बिकम्स जीरो। जब टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ अगेन टाइम करंट बिकम्स नेगेटिव मैक्सिमम, अपने नेगेटिव पीक पर आ गया, एंड सो ऑन दिस प्रोसेस गोज ऑन। दिस इज द टाइम डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट।
नाउ हाउ टू ड्रॉ द आर्गन डायग्राम और द फेजर डायग्राम। आर्गन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिस इज द बेस लाइन, यानी द लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम t इक्वल टू 0, 0 टाइम पर ये थी। तो ये मेरी ओमेगा टी का फेज के साथ अगर मैं जाता हूं तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल मेरे पास ओमेगा टी आने वाला है। सो यहां पर v कैन बी रिटन एज, ये जो ग्राफ मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी को, क्योंकि अगर मैं देखूं दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, वैल्यू 0 से v नॉट तक मैंने इसका लिया है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू होगा v नॉट साइन ओमेगा टी, यानी v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है मेरे पास। क्योंकि मुझे पता है वोल्टेज से जस्ट 90 डिग्री पीछे है करंट, तो करंट को मैंने इसके नीचे राइट डिग्री नेगेटिव पीछे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ करंट, और करंट का जो फेज एंगल आता है वो आता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी ये एंगल भी यही होने वाला है। और जब मैं करंट की वैल्यू ढूंढूंगा तो ये करंट था, तो यहां से I विल बी रिटन एज आई नॉट पीक वैल्यू साइन ऑफ दिस एंगल, और ये एंगल क्या था ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये है आर्गन डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसमें कई बार एक चेंज आता है, इस चेंज को और समझ लें। समटाइम्स इट इज गिवन दैट करंट को उसने बेस मान लिया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट को आई नॉट साइन ओमेगा टी से उसने डिफाइन किया है। देन वोल्टेज क्या लिखा जाएगा, V विल बी रिटन एज V नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, दैट्स व्हाई यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में ये जो ग्राफ मेरा यहां पर, अगर मैं इसको वोल्टेज का ग्राफ करंट का ग्राफ मानता हूं, अगर इस ग्राफ को मैं करंट ग्राफ मान लूं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये फिर वोल्टेज का ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा। वोल्टेज का ग्राफ मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखते हैं फटाफट। जस्ट इट इज ए क्विक रिकैप। यहां पर मैं वैल्यू को मॉडिफाई कर लूंगा, ये बन जाएगा मेरे पास आई नॉट, और ये भी बन जाएगा आई नॉट। थोड़ा सा बड़ा मैं इसको ले लेता हूं वोल्टेज के लिए, ये प्लस वी नॉट, और नीचे थोड़ा सा ले लेता हूं माइनस वी नॉट। अब जब मेरे पास यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू आएगी तो यहां पर मैं इसको प्लस करके दिखाऊंगा। तो जिस टाइम करंट 0 होगा यहां पर ये करंट का फेजर आएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा वोल्टेज का फेजर। तो जिस टाइम करंट 0 होगा वोल्टेज उस टाइम प्लस पर होगा, यानी वी नॉट पर होगा, क्योंकि यहां पर ओमेगा टी 0 होते ये पाई बाई 2 होगा। तो दिस ग्राफ विल इनिशिएट फ्रॉम पीक वैल्यू, ये ग्राफ यहां से इनिशिएट होगा, it will reach the negative peak at time t by 2 and again becomes 0 here. तो this will be the graph, ये ग्राफ किसका आएगा, this will be the graph corresponding to the voltage, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा this way। तो ये v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का ग्राफ होगा। कई बार ये भी किया जाता है, इस तरह से दे देता है रिप्रेजेंटेशन। फिर फेजर डायग्राम में क्या चेंज होगा, आर्गन डायग्राम एक बार फिर देख ले। मैंने यहां पर बनाया है बेस लाइन, यानी t इक्वल टू 0 का टाइम, यहां पर मैंने लिया है करंट I नोट, ये एंगल है ओमेगा टी, यहां से यहां तक आ जाएगा मेरे पास I। अब क्योंकि मुझे वोल्टेज बनाना है, वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, तो मैं यहां से एक बड़ा ग्राफ 90 डिग्री के एंगल पर बना दूंगा, दिस विल बी V नॉट, और यहां से एक प्रोजेक्शन डालूंगा, दिस विल बी V। ये एंगल यहां पर मेरे पास, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा ओमेगा टी प्लस 90। ये एंगल मुझे यहां से यहां तक लेना है पूरा, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का आएगा। दिस वे आई कैन से कि हमारा जो ग्राफ है वो वोल्टेज लीडिंग होगा, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट पीछे होगा। तो दिस इज द फेजर ऑफ इंडक्टिव सर्किट विद दीज वैल्यूज।